السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 12th کلاس کا اردو کا جو بک ہے کہکشاں، اس کا تیسرا لیسن پڑھنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اس چیپٹر کے مصنف کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، ان کے پورے ڈیٹیلز کو بتایا تھا۔ آج اس چیپٹر کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا سپورٹ کرتے رہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے یہ ویڈیو ان بچوں تک پہنچ جائے جو 2025 میں ایگزام دینے والے ہیں، اور آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کی ہیلپ سے وہ بچے جو ہے اپنی خوب اچھے طریقے سے تیاری کر سکے۔ میرے دوستو، چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کلاس 12 اردو چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ کیا نام ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ اور یہ چیپٹر ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مضمون یعنی نبند، جس کو انگلش میں ایسے بولا جاتا ہے۔ اور اس چیپٹر کے مصنف کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ تو میرے دوستو، چلیے بلا تاخیر اس چیپٹر کو ایک دم بالکل اچھے طریقے سے ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ دھیان سے سنیے، میں اس کو پڑھتا ہوں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے وہ کمنٹ باکس کے مادھیم سے ضرور پوچھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دھیان سے سنیے سبق کو۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ لوگ اپنے اپنے تجربے اور عادت کے مطابق اس کے کئی جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا خیال ہے وہی اکثروں کا ہے، یعنی یہ کہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے سارے دن کے لیے ڈھارس ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس پیراگراف کو آپ لوگ خوب اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سید سلیمان ندوی لکھ رہے ہیں کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اب لوگ اپنے اپنے تجربے کے حساب سے، اپنے اپنے سوچ و فکر کے حساب سے کوئی کچھ جواب دیتا ہے، کوئی کچھ جواب دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا صبح کا ناشتہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کھانوں میں سب سے زیادہ بہتر کھانا، ضروری کھانا رات کا کھانا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا دوپہر کا کھانا ہے۔ لیکن سید سلیمان ندوی کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے وہی اکثروں کا خیال ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا صبح کا ناشتہ ہے۔ سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ صبح کا ناشتہ ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے سارے دن کے لیے ڈھارس ہو جاتی ہے، یعنی صبح سویرے اگر کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں تو سکون ملتا ہے، جسم کو تسلی ملتی ہے۔ ڈھارس یعنی تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ناشتہ کے لیے اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح بن گئی ہے، یعنی یہ تعجب کی بات ہے، ناشتہ کے لیے اکثر بھاشا میں، زبانوں میں یعنی بھاشوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح بن گئی ہے۔ میں 2 زبانیں جانتا ہوں۔ سید سلیمان ندوی کہہ رہے ہیں کہ میں 2 زبانیں جانتا ہوں، یعنی 2 بھاشا جانتا ہوں، ایک پورب کی اور ایک پچھم کی، یعنی عربی اور انگریزی۔ کون کون سا بھاشا جان رہے ہیں سید سلیمان ندوی؟ عربی اور انگریزی۔ دونوں میں یہی بات ہے۔ اس سے سمجھتا ہوں کہ اور زبانوں میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عربی اور انگریزی میں سمجھتا ہوں
औरों ज़बानों में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरबी में उसको फतूर कहते हैं। किसको? नाश्ता को क्या बोला जाता है? फतूर। उसी से मुसलमानों का इफ्तार निकला है। यानी फतूर जो शब्द है, फतूर जो वर्ड है, फतूर जो लफ्ज़ है, उसी फतूर से मुसलमान जो रमज़ान में इफ्तार करते हैं ना, वह इफ्तार बना है। फतूर से क्या बना है? इफ्तार। और जिससे इफ्तार करें, यानी जो ग़िज़ा, जो खाना से मुसलमान इफ्तार करते हैं, उस खाने को इफ्तारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इफ्तारी कहते हैं। तो फतूर के माना तोड़ने के हैं। फतूर के माना क्या है? तो उस खाने से मुसलमान रमज़ान में रोज़ा तोड़ते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इफ्तारी बोला जाता है। ठीक है। तो फतूर के माना क्या है? तोड़ने के हैं, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। देखिए यहाँ लिखा है, रोज़े को भूख के तोड़ते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इफ्तारी। हमारा नाश्ता भी उसी किस्म का लफ्ज़ है। हमारा नाश्ता भी उसी किस्म का लफ्ज़ है। फ़ारसी में उसका माना उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ न खाया हो। फ़ारसी ज़ुबान में उस लफ्ज़ का माना वह है उस भूखे के लिए है जिसने सुबह से कुछ न खाया हो। आगे देखिए, अब देखिए कि ये नाम तो उस आदमी का था जिसके मुंह में सुबह से कुछ न पड़ा हो, और अब हम इस चीज़ को कहते हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए, यानी उस शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। उस शख्स के नाम के बजाय क्या हो गया? चीज़ हो गया। इस माना में एक और लफ्ज़ है। इस माने में एक और लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ है? निहार। क्या लफ्ज़ है? निहार। आप बोलते हैं निहार मुँह, ये भी फ़ारसी लफ्ज़ है। हम लोग बोलते हैं निहार मुँह, यानी बगैर कुछ सुबह खाए हुए। मगर देखिए कि ये फ़ारसी हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया है गोया कि हिंदुस्तानी ही है। ये निहार जो फ़ारसी का लफ्ज़ है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ये ऐसा मिल गया है कि लगता है कि हिंदुस्तान का शब्द है। इसकी असलियत नहार है। निहार का असलियत क्या है? निहार का असलियत क्या है? नहार। क्या है? नहार। ना यहाँ पे नफ़ी के लिए बोला जाता है। नफ़ी यानी किसी काम से रोक दिया जाए, तो नफ़ी के लिए है। और हार के माना होता है ग़िज़ा। हार के माना क्या होता है? ग़िज़ा। तो नहार यानी नहीं खाया हुआ। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर कोई दवा डॉक्टर लिखता है कि खाली पेट खाना है, तो डॉक्टर मरीज़ को ये भी बोलता है कि निहार मुँह खाना है, यानी बगैर कुछ खाए हुए खाना है, खाली पेट खाना। तो यहाँ नहार का माना क्या हुआ? यानी नहीं खाया हुआ। ठीक है। अब इस नहार यानी निहार तैयार हुई निहारी अब इससे नहारी यानी नहारी तैयार हुई। नहार से क्या बना? नहारी। नहार से क्या बना? नहारी। जो सुबह को नहार मुँह खाई जाए, यानी बगैर कुछ खाई जाए, बगैर कुछ खाई जाए। और लखनऊ और दिल्ली में ये ख़ास चीज़ हो गई। किस किस जगह पे? लखनऊ और दिल्ली में ये ख़ास चीज़ हो गई, जो बाज़ारों में पकी पकाई बहुत चटपटी मिलती है। दिल्ली और लखनऊ में ये निहार एक चटपटी चीज़ हो गई है जो पकी पकाई मिलती है। नहार से आहार। अब नहार जो वर्ड है उससे याद आता है आहार वर्ड। क्या आता है? आहार। आहार आटे की उस लोई को कहते हैं जो कागज़ और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि वह मज़बूत हो जाए। आहार कागज़ पर और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि वह मज़बूत हो जाए। आप सुन चुके हैं कि आहार ग़िज़ा को भी कहते हैं। आहार का माना ग़िज़ा भी होता है, खाना भी होता है, जो बदन की तक़वियत का बायस होती है, जिससे बदन, जिस्म, बॉडी जो है मज़बूत होता है।
उससे उस लोई को भी कहने लगे जो कागज़ और कपड़े की क़ुव्वत को बढ़ाती है, जो आहार, कपड़ा और कागज़ को मजबूत करती है, कवी करती है, वह एक तरीके से इंसान की ग़िज़ा भी है। अगर इंसान उसको इस्तेमाल करता है तो उसके जिस्म, उसके बॉडी जो है कवी होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। रोज़मर्रा के खानों में कली, क़ुरमा बहुत आम चीज़ें हैं। कलई की शक्ल अरबी है। कलई क्या है? अरबी है, मगर माना अरबी नहीं। कलई जो वर्ड है तो ये तो अरबी है, लेकिन इसका माना अरबी नहीं। कलई की अरबी शक्ल कुल्लिया हो सकती है। क्या हो सकती है? कुल्लिया हो सकती है। अरबी में कुल्ली भूनने को बोलते हैं। कुल्ली क्या बोलते हैं? भूनने को कहते हैं। इससे कुल्लिया बन सकता है। कुल्ली से क्या बना? कुल्लिया बन सकता है। और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं कुल्लई। ठीक है। हमारी ज़बान में कुल्लई उस शुरबादार गोश्त को कहते हैं। हमारे भाषा में कुल्लई उस किस गोश्त को बोला जाता है? जिस गोश्त में शुरवा वगैरह होता है, जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो, बल्कि उसी तरकारी को कुल्लिया कहने लगे हैं। कुरमा तो तुर्की का शब्द मालूम होता है। कुरमा जो है तुर्की का है। हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ मज़मून की सुर्ख़ी यानी उन्वान है। यानी आप जो भी देखते हैं, जो भी मज़मून लिखा हो, यानी मज़मून लिखा हो या अफ़साना लिखा हो या नावल लिखा हो, तो उसकी हेडिंग होती है। तो पहले के ज़माने में उस हेडिंग को सुर्ख़ी से यानी लाल स्याही से लिखी जाती थी। तो उसी को कहा जा रहा है हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ मज़मून की सुर्ख़ी यानी उन्वान, टॉपिक, हेडिंग। ठीक है। तो सुर्ख़ी यानी उन्वान है। देखिए तो ये स्याही से सुर्ख़ी कैसे बन गया? स्याही से क्या बन गया? सुर्ख़ी। बात यह है कि पहले ज़माने में कलमी किताबों में बाब और उन्वान को इम्तियाज़ के लिए सुर्ख़ी से लिखा करते थे। पहले के लोग जो है उन्वान देने के लिए, हेडिंग देने के लिए लोग सुर्ख़ी यानी लाल स्याही से लिखा करते थे। अब हमारे ज़माने में जब छापा ईजाद हुआ यानी प्रिंट होने लगा, तो ख़ुद बाब के या मज़मून के उन्वान को सुर्ख़ी कहने लगे। यानी पहले के ज़माने में भी लोग उसको सुर्ख़ी बोलते थे और अभी के लोग भी उसे सुर्ख़ी कहने लगे। चाहे आप उसको स्याही से लिखें, स्याही से भी लिखते हैं तो वो सुर्ख़ी ही बोला जाएगा। अब आगे देखें, अहदी। अहदी हा के ऊपर साकिन है, अहदी। तो इसका माना है, अहदी के माना हमारी ज़ुबान में सुस्त और काहिल के। अहदी का माना ध्यान दीजिएगा, अहदी और अहदी में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अहदी का माना हमारे ज़ुबान में सुस्त और काहिल के हैं, मगर इन सुस्त काहिलों को पैदावार तारीख़ी है। ठीक है। अहदी, अहदी और अहदी है। ठीक है। अहदी के माना अरबी में एक है। अहदी के माना अरबी में एक है और अहदी, अहदी साकिन है पर ला दिए तो उसका माना काहिल और सुस्त है। वह सिपाही जो फ़ौज से अलग अकेला ड्यूटी की खिदमत पर मामूर रहता था, अकबर ने उसको अहदी यानी अकेला का लक़ब दिया था। किस चीज़ का लक़ब दिया था? अकेला का। ये अहदी खाते थे और ड्यूटी पर पड़े रहते थे, यानी कोई काम काज उनसे मुतल्लिक़ ना था। यानी वो लोग क्या करते थे? खाते थे और सोए पड़े रहते थे।
यानी वो सोते सोते काहिल और सुस्त हो गए थे, इसलिए ज़बान खल्क ने उसको सुस्त और काहिल के मानों में भी कह कर पुकारा। ज़बान खल्क को कौन रोक सकता है, यानी दुनिया वाले के जो मखलूक है, खल्क है, उनके ज़बानों को कौन रोक सकता है। जो लोग चाहें उसको जिस वर्ड से नवाज दे। हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ क़िलई है। क्या है? क़िलई। आइए इसको भी क़िलई खोलें, यानी क़िलई को क़िलई खोलें। क़िलई अरबी में और उससे फ़ारसी में रांगे को कहते हैं। क़िलई अरबी में लिसान, ज़ुबान बोलते हैं, क़िलई मतलब लिसान, और उसे फ़ारसी में क्या बोलते हैं? रांगे को कहते हैं। मगर रांगे को क़िलई क्यों कहते हैं? लिसानुल अरब का बयान है, यानी अरब के ज़बान दान का बयान है कि क़िला एक कान का नाम है। क़िला एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है। किस चीज़ की बेहतरीन किस्म निकलती है? रांगे की। इसलिए उसके तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को क़िलई कहते हैं। अच्छे रांगे को क्या बोलते हैं? क़िलई कहते हैं। और चूँकि उसी रांगे से तांबे की बर्तनों में सफ़ेदी फेरी जाती है। क्या की जाती है? सफ़ेदी फेरी जाती है, इसलिए उसको क़िलई करना कहने लगे। उसको क्या कहने लगे? क़िलई करना कहने। फिर चूने से भी अगर मकानों पर सफ़ेदी फेरी गई तो उसको भी क़िलई फेरना कह दिया। हमारी ज़ुबान में इन इस्तेमालों से ये माना पैदा हुए कि किसी दाग धब्बे या किसी के ऐब को अगर छुपाया जाए तो वह उस पर क़िलई फेरना हुआ। किसी की ऐब को, किसी की बुराई को, किसी के ख़राबी को अगर छुपा दिया गया तो वह क्या कहा जाएगा? क़िलई फेरना, यानी उसके उयूब को छुपा देना। और अगर उस दाग धब्बे और ऐब को, यानी उसके बुराई को ज़ाहिर करके सबको दिखाया जाए तो ये बोला जाएगा क़िलई खुलना। मेरे दोस्तों, अभी यहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मेरे दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस चैनल पर बने रहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप खूब अच्छे तरीक़े से, खूब मेहनत से पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।